पे उतरना पसंद करते हैं। वेल इस बार जो ट्रेजेक्ट्री है वो एकदम हॉरिजॉन्टल है. इट स्टार्ट्स राइट ऑन ऊर्जा वैली और जाता है एरावत फाउंड्री के ऊपर. आई डोंट नो व्हाई आई कीप सेइंग फाउंडेशन, माय बैड अबाउट इट. बट लेट्स सी वेयर दीस मे टीम्स बी यू लाइक गो. फाउंडेशन। Perhaps. Well, Global Esports is going back to their old drop location near Way Station and Vigilance. Godlike unchanged on Gufa. NXT जो है वो जा रहे हैं डेटा सेंटर की तरफ all the way down south और वहां पे उनकी भिड़न हो सकती है against orangutan who are actually splitting up between Knowledge Park and Research Lab. बट आपको कोई भी ऐसा ड्रॉप नजर आ रहा है? आई थिंक मुझे पता है गॉडलाइक को गुफा जाना बहुत ज्यादा पसंद है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट कोई ऐसा ड्रॉप आपको नजर आ रहा है जो कंसिस्टेंट हुआ हो पिछले 3 मैचेस में? इसको मतलब ऑब्वियसली इन द लास्ट 2 मैचेस प्लस दिस मैच। I mean, NXT have been quite consistent with their drop as well. लेकिन इस बार जटायु सेंट्रल एंड बाजार का जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा congested है. We have Team Myth over there. We have Reckoning Esports over there. For that matter, Reckoning Esports भी जटायु सेंट्रल को अपना एरिया बना चुके हैं to some extent. They've been dropping there consistently today. And I hope that this game also pans out for them. क्योंकि फर्स्ट गेम में रेकनिंग और NXT की फाइट ऑलमोस्ट होने वाली थी, but they kind of just held off on it because Team EG interfered. This time, there's Myth right next to them, and Reckoning Esports are already starting to slay. We have first blood, ladies and gentlemen. पहला kill इस गेम का already निकाला जा चुका है, courtesy of Reckoning Esports. They get the first point. एब्सोल्युटली उनको पहला पॉइंट मिलेगा, एंड मुझे लगता है यहाँ पे डिसाइड करके थोड़ा सा एग्रेशन दिखाना चाहते हैं, and मैं देखना चाहता हूँ क्योंकि टैक्टिकली काफी साउंड टीम है, मैकेनिकली अब देखना है कि क्या वो डिलीवर कर पाते हैं अगर एग्रेसिव खेलते हैं तो। बट ऑफ कोर्स प्रॉप्स टू देम, जिस तरीके से शुरुआत करी है वही मोमेंटम कैरी ऑन करना चाहेंगे वो। So there is some gap between them and their opponents now. एक बहुत बड़ा road है, and there you go, ladies and gentlemen. That is the MVP of the previous game, Godlike Evil. And as the name suggests, she can be quite nefarious with her aim. नेम तो इविल है, जो उनका कैरेक्टर है मेग बालिका, उन्होंने जो 7 किल्स निकाले, ऐसे नाम के साथ आप यूजुअली कैरेक्टर, एटलीस्ट कैरेक्टर के नाम के साथ आप एसोसिएट नहीं करते मेग बालिका, लेकिन 77.78% कंट्रीब्यूशन अपनी टीम के लिए और 7 किल्स 1,500 का डैमेज। Sheesh. I mean, I'm surprised that it's still 7 kills with that much damage. She should have had a lot more. Double digit में होना चाहिए था उनका damage, उनका kills. But I guess some of the players just survived her and managed to heal themselves off and everything. So that's cool. So far सिर्फ एक player मारा गया है, and that is gonna be Pranjal from Team Myth. और वो भी Reckoning के हाथों मारा गया है. So with just 1 kill in the game so far, it's off to a slightly hotter start than last time. Obviously अभी फाइट थोड़ी और डाई डाउन हो चुकी है, लेकिन this was a kill like literally 5-10 seconds into the game, and here's another one, and this was a judgment kill. Keep in mind, judgment से kills निकालना बहुत difficult होता है, लेकिन अगर आपके shots connect होते हैं तो हर bullet 50 damage करती है, हर headshot का 108 damage पड़ता है. You can potentially two tap someone out of existence. टू टैप समबडी आउट ऑफ एग्जिस्टेंस, या फिर इस लोग से कोई और लोग में भेज सकते हैं आप उनको। Yep. वीर लोग से पाताल लोग, इमेजिन इफ दैट वाज एक्चुअली इन द लोग। I mean, I think there's a Swarg look in the loading screen. At least वहाँ लिखा तो आता है. And there's a lot more mythological references जो हम बाद में भी explore करेंगे. फिलहाल, Reckoning Esports is encouraging Myth to explore the lobby once again. मैं तो आइडिया दे रहा हूँ, बना लो एक पाताल लोग, 1v1 करा दो, उसके अंदर बच गए तो वापस लेके आ जाओ वीर लोग। Are you suggesting a gulag? नो, आई सेड पाताल लोग। Okay. Alright. I mean, don't give me ideas, man. Reckoning Esports, लेकिन okay, so they're not done yet. Okay, they saw one player of Myth just somehow trying to run away, and they're like, nah, हम इनको भी बच के नहीं जाने देंगे. Dada, you better run because Reckoning Esports are chasing you hard, hot on their heels, and there you have it, ladies and gentlemen. हमारे पहली team of this game has been eliminated, and Team Myth will go out with 0 points. जी हाँ, राणा वहाँ पे बहुत स्लाइड करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इफेक्टिव नहीं था बिकॉज इतना ज़्यादा स्लोप नहीं था वहाँ पे। बट गेटिंग बैक टू दिस वन, रेकनिंग की अगर बात करें, प्लेयर कंजर्वेशन जो है वो काफ़ी अच्छी तरीके से करती है, चारों के चारों प्लेयर्स को इकट्ठा करके रखती है, एंड एट द सेम टाइम
बचा के भी रखती है, तो मैन एडवांटेज बहुत काम लगता है। लेकिन ओजी 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 लास्ट टाइम बहुत भारी पड़ा था। पहले हेडीज गए थे आई बिलीव, फिर But yeah, मिस्टर जय गए थे। yeah. And this is the null area I was talking about. बीच में एक खाई है. You can see clouds underneath. So यहाँ एक दो ऐसे ब्रिजेस है जो पिछले गेम में कैंप हो रखे थे. इस बार ओजी ने वो कैंप करके रखा था, अज्यूमिंग कि सदर्न साइड से कोई दूसरी टीम आएगी और वो उनको भी पकड़ सकेंगे. और उनके पीछे एक टीम है, एनएक्सटी के कुछ प्लेयर्स उनके पीछे जस्ट फॉलो कर रहे हैं, बट आई डोंट थिंक दे विल इंटरेक्ट विद ईच अदर जस्ट येट. देखेंगे देखेंगे जरूर क्या होता है आगे। लेकिन ऑक्टेवियस किस तरीके से साइडवेज I तूफान की खास mean, yeah, I mean, if it can go sideways, it's good, right? Evasive driving. इवेसिव ड्राइविंग। एंड टू बी फेयर, अगर आप सोचे कि अगर हवर कर रहा है Hmm. तो जा सकते, क्यों नहीं जा जा सकते। सकता है, right? I mean, the mechanics of the game allow that to happen. In fact, I think we are yet to see the best usage of bikes in this game, considering it's a floating bike and it can move in multiple directions like that. It doesn't work like normal bikes in या normal other या games. So I think eventually someone will figure out like the most OP movement techniques, and then that will become meta. So let's see, हमें वो बाद में देखने मिलता है कि आज ही कोई ना कोई उसे फिगर आउट कर लेगा. क्रिप्स टाइम टू गेट टू वर्क फॉर यू। I guess, yeah. लेकिन मैं सच बताऊं, मैकेनिकली अगर आप डेवलप करेंगे अपनी स्किल को इस गेम के अंदर, वो तो आपको ऑब्वियसली कोई भी गेम के अंदर हेल्प करता है। लेकिन एट द सेम टाइम देयर सो मेनी थिंग्स यू कुड डू टैक्टिकली आल्सो बिकॉज ऑफ ऑब्वियसली कॉस्मियम। Yeah. मुझे लगता है कि आज की सारी मैचेस ऐसे ही निकलने वाली है। Yeah, right. I mean, कल हमने ड्राई रन के लाइक प्रैक्टिस के 5 मैचेस खेले थे, जिसमें से सिर्फ एक गेम में हमें कॉस्मियम विन देखने मिला. बाकी सारे गेम्स में हमें एलिमिनेशंस एंड किल विंस देखने मिले. बट यहाँ पे वी हैव ओनली सीन 2 गेम्स सो फार एंड बोथ ऑफ देम हैव बीन कॉस्मियम विंस. सो एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा बदल गई है फ्रॉम द टीम्स. Even the way the matches are taking place, it's very different from what I imagined it would be like. जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। बट फिलहाल के लिए जी के प्लेयर्स देखिए आराम से बैठे हुए हैं, दूर नहीं जाना चाहते हैं। सूकी और म्यूकिन हमेशा साथ में होते, इसका कोई कारण है? So one of them if just focuses on giving call outs and one of them focuses on fighting. Suki is a more of the tactical person as much as I know. And Myokin, he's a little more aggressive, a little more hot-headed. ऑफ इन कोर्स। सब का ऑपोजिट है जेडी, जो कि एग्रेसिव खेलते तो है लेकिन वो बहुत ठंडे दिमाग से, शांत दिमाग से खेलते हैं. So जेडी के साथ मैं खेला हूँ पहले। उन्होंने एक आई रिमेम्बर वंस वी वर प्लेइंग एंड उन्होंने कहा कि चलो आज मैं कॉलिंग करता हूँ। hmm, that must have been like a very calm session of gaming for नो you, नो नो right? नो नो, वी It डाइड इन wasn't? 2 minutes। Okay. वी डाइड इन 2 minutes। I think a lot of other people will die in 2 minutes over here. ये देख लीजिए निर्वाणा का जो ईस्टर्न एज है, वहां पे कितने सारे टीम्स है. यू हैव ग्लोबल esports, you have enigma, at the same time reckoning esports उन दोनों के बीचों बीच आ रही है. I hope they don't get sandwiched. I think NXT will be quite safe because वो हल्का सा सदर्न साइड से एंट्री ले रहे हैं. जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन अब देखिए नदी के आजू बाजू जो फाइट चल रही है यहाँ पे, वो इट्स नॉट गोना बी एन इजी फाइट बिकॉज इतना ज़्यादा कवर है आपके पास। एंड उस कवर के बीच में से आपको लड़ना है। दोनों के दोनों प्लेयर्स, दोनों की दोनों टीमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हुए। बट आई थिंक इट्स स्टिल गोइंग टू बी अ स्टेलमेट। मुझे नहीं लगता है यहाँ पे और कोई आपको एक्शन देखने मिलेगी, ना कोई एलिमिनेशन देखने मिलने वाला है। I mean, if they can avoid fighting for that long, great, better for them. लेकिन they are so close to each other, obviously एक दूसरे को spot तो किया रहेगा. अगर नहीं किया तो their loss, I guess. एटलीस्ट ये रिवर ऐसी है जहाँ पे आप ब्रिज कैंप करके इतना ज्यादा फायदा नहीं उठा सकते हो. वो रिवर काफी शैलो है, तो यू कैन जस्ट क्रॉस इट नॉर्मली विदाउट एक्चुअली हैविंग टू गो थ्रू द ब्रिज. हाँ, लेकिन कल ना हमने एक ऐसी गेम देखी जो लिटरली ब्रिज के ऊपर एंड हुई थी. वो निर्वाणा उसके ऊपर ही बना था, तो कोई प्लेयर्स ब्रिज के ऊपर, कोई प्लेयर्स ब्रिज के नीचे छुपे हुए थे. ऐसे बहुत सारे चीकी प्लेस हमें देखने मिले थे कल. दैट वाज आल्सो क्वाइट इंटरेस्टिंग. या इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। बट फिलहाल के लिए ज़्यादा कुछ हो नहीं रहा मैप के ऊपर। आप देखिए 5 प्लेयर्स ही एलिमिनेट हुए एंड इट्स बीन क्वाइट अ वाइल। मैच स्टार्ट हुआ और 9 मिनट हो चुकी है एग्जैक्टली. एंड अभी तक सिर्फ और सिर्फ 5 प्लेयर्स। तो कितना पैसिव खेलना चाहती है टीमें ये आप देख सकते हो। एंड मेरे हिसाब से आई डोंट थिंक दैट्स अ बैड अप्रोच टू टेक एट ऑल। नॉट एट ऑल. Look at that place over there, जो आपको मैप पे दिख रही है. It kind of looks like a huge brown archway. That is one of the entrances to गुफा. Obviously गुफा के 4 entrances है.
You can enter that from both sides, or you can just drop in the center. But for now, you have Super 4 versus EG Enigma Gaming. And Super 4 के अभी जो है वो बहुत कम एचपी सर्वाइव करके स्मोक में अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं. स्पार्की ऑलरेडी डाउन है. ही इज गोना ट्राई एंड गेट बैक विद हिज टीममेट्स. लेकिन जब तक बाकी ईजी के प्लेयर्स खुद को हील कर रहे हैं, you have one player who is trying to move a little ahead. That's player number 2, trying to push the envelope, push the edge. Somehow Omi will be able to get back to safety, लेकिन अभी वहां पे अकेले फंस जाएंगे and he will be downed eventually. On the other side of the map, Reckoning Esports is trying to third party on this fight, और वो EG के ऊपर हमला बोल रहे हैं. Then they won't differentiate, they won't discriminate between EG and Super 4. Reckoning Esports is out for blood. Which is very different. जो उनका यूजुअल अप्रोच है उससे काफी ज्यादा अलग है. पैसिव खेलना पसंद करते थे, लेकिन अब रुकने का नाम नहीं लेंगे. ओह माय गुडनेस, रेकनिंग को देखिए जो मुंह तोड़ जवाब देते जा रहे सामने वाली टीम को. और उसके पहले, उसके थोड़ी देर पहले आई बिलीव एक और फाइट हुई थी. मैं किल शीट पढ़ नहीं पाई थी जल्दी. Yeah, that was a lot of kills in just very short amount of time. उन्होंने तूफान से उनको ऊपर चढ़ने की कोशिश करी थी वहां पे. Yeah, it's literally slamming it in. And if you can't kill them by the तूफान से नीचे उतर के उन्हें लोकेस से किल निकाल लिया है. And Reckoning Esports now looking to finish off what they started. ताहा अकेले बचे हैं EG की तरफ से, and Bearded बाबा उनको खत्म कर डालेंगे. That LMG is devastating, especially इतने close range पे. There's so much to do. लेकिन यहाँ से अभी Reckoning को बहुत जल्दी निकलना पड़ेगा. निर्वाणा उन्हें पुश कर रहा है, and they will have to go all the way around. Luckily, they have तूफान bikes, so they should be able to get out of there quite quickly. जी हाँ, they should be able to get out of there quite quickly. लेकिन अब जो धीरे धीरे निर्वाणा सिकुड़ते जाएगा, एंड थोड़ी वक्त में कॉस्ट में भी हमें नजर आएगा. लेकिन जब वो होगा, इस बार मैं देखना चाहता हूँ 3 या 4 या 5 टीमें अगर वो सर्वाइव कर पाती है कॉस्मियम के लिए जाने के लिए. Alright, so there's a lot of things that can happen over here. First of all, OG versus Reckoning Esports बहुत ज़्यादा possible लग रहा है. वो दोनों जोन के एज पे है. They don't need to fight each other yet, but it's quite an isolated fight. तो अगर वो अभी शुरू करेंगे तो थर्ड पार्टी होने की opportunities काफी कम है. Meanwhile, Global Esports के वत्सल, उनने Infinite के सैंडी को नॉकआउट कर दिया है. Will he be able to finish off that kill? I hope so for his sake. लेकिन अगर वो नहीं भी होता है तो Global Esports स्प्लिट होके खेल रही है. वत्सल एंड सुकी साथ में जा रहे हैं. Meanwhile, मियोकिन क्लिफ के दूसरे साइड पे है, very far away from his team, and I think he's gonna play as a backup player, ताकि अगर ये दोनों प्लेयर्स मारे जाए रोटेशन के बीच में, at least मियोकिन can survive and get his team some placement points. जी हाँ, बिल्कुल सही कहा कि प्लेसमेंट पॉइंट्स उनको निकालने होंगे. ये कोशिश करी है उन्होंने, बट इतना ज्यादा कर नहीं पा रहे, बिकॉज हमेशा वो अपने आप को ऐसी पोजीशन में पाते हैं जहाँ पे या तो सामने वाली टीम के पास काफ़ी अच्छा एंगल होता है, या फिर बस उनका जो लक है वो इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि एवरी सिंगल टाइम दे फाउंड देमसेल्व्स स्टक बिटवीन अ रॉक एंड हार्ड प्लेस. अब बात करें सुकी और वत्सल, देखिए अभी भी जिस पोजीशन में, मुझे नहीं लगता कि ज्यादा देर टिक पाएंगे वहां पे. Yeah, so Global Esports is stuck in between a rock and a hard place. Team Infinite उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल सकती है. Meanwhile, Reckoning Esports is actually trying to gatekeep OG over there. And by gatekeep, I mean वो उनको निर्वाणा के अंदर आने नहीं देंगे. Reckoning के जो प्लेयर्स है वो क्लिफ के 2 अलग-अलग साइड पे पोजीशन लेके बैठे हैं, from where they can set up a crossfire against Team OG, and Reckoning starts fighting them at the same time. Godlike starts fighting NXT. That's 2 massive fights going on at the same time. At least ये वाला fight indoors हो रहा है, and Godlike they have a massive chance of eliminating Team NXT right here. Shub Gamers and Rahul, both of them surviving on their last legs. Hidden goes down. Thunder को नेट से उड़ा दिया जाएगा. Evil once again on a rampage, and here comes the rest of the squad. Clutchy coming up with a kill of her own as well, and within a matter of seconds, Team NXT is out of this server. Incredible work, absolutely incredible work. जिस तरीके से, जिस पेस के साथ यहाँ पे सारी की सारी टीमें खेलते जा रही है, एंड मैंने कहा था जैसे ही जोन सिकुड़ेगा और भी ज्यादा एग्रेशन आपको नजर आएगा सारे के सारे प्लेयर्स और सारी की सारी टीम्स के बीच में से. लेकिन अब देखना ये बनता है कि ये 5 टीमें क्या गुल खिलाती है. जोन जो निर्वाणा कहते हैं जिसे, वो किस तरफ जाएगा. लेकिन इन द मीन टाइम इविल एक और वहां पे अपने आप के लिए किल निकालते हैं. आई डू बिलीव दैट इज रफ्तार. Yeah, that is Raftar, and that was also Suki that they managed to kill. Global Esports के पास जो idea था वो हल्का सा flawed था. They tried to third party in this situation, लेकिन by the time they arrived, Godlike already fight खत्म करके reset कर चुकी थी, अपने सारे health points वापस heal कर चुकी थी, and that kind of puts them at a disadvantage. अब Global Esports के एक player जो है वो survive करके कैसे ना कैसे आगे जाने की कोशिश करेंगे, and Vatsal is right behind the entirety of the Godlike squad. If he can play this card
well, he will be at least able to get one kill and probably even finish them off. लेकिन वत्सल को पहले किसी और से डैमेज पड़ जाएगा. No wait, वत्सल को नॉक किया गया by 8-bit, लेकिन किल चोरी कर लिया गॉडलाइक ने. My goodness, मैडमैन की सारी एफर्ट्स वेस्ट हो गए. जी सारे के सारे एफर्ट्स वेस्ट हो गए, लेकिन गॉडलाइक को देखिए किस तरीके से अंदर आ रहे हैं. मैडमैन बहुत चीकी पोजीशन में, उनके पास जो एंगल है खतरनाक घातक साबित हो सकता है सामने वाली टीम के लिए. लेकिन बैटमैन की कितनी क्लच को अब डाउन करेगी. Oh my goodness, बैटमैन! What in the world was that? He is just raining hellfire and destruction. 4 नेड्स डाल दिए थे उनने और चारों के चारों नेड्स गॉडलाइक के जस्ट पैरों पे फटे, instantly blowing them apart. Meanwhile, Reckoning Esports are trying to go for the Cosmium once again, and 8-bit won't let that happen. हाँ, लेकिन कॉस्मियम आ चुका है और अब इंटरेस्टिंग हो जाएगा, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग यहाँ पे ये मोमेंट. 3 टीम्स 8 प्लेयर्स, कोई भी कॉस्मियम के पास जाने की कोशिश करेगा. सारे के सारे प्लेयर्स बहुत नजदीक है. रेकनिंग क्या एक और बारी कर पाएगी? मुझे नहीं लगता. बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला उनके लिए. सामने 8-bit इंतजार कर रही है, लेकिन एस ब्लैक पीछे हटेंगे. उनको हील करने की जरूरत. युवा को भी काफी ज्यादा डैमेज पड़ा हुआ है यहाँ पे. दिस कुड बी अ मैसिव प्रॉब्लम. 8-bit नजदीक जाते हुए, लेकिन फॉक्स ओपी देखिए पूरी की पूरी कोशिश कर रहे हैं वहां पे उनको पीछे धकेलने की. एंड आई डू बिलीव कि 8-bit के पास अभी भी मौका है, लेकिन उनकी पोजीशन उनको संभाल के रखनी पड़ेगी. Exactly, 8-bit are down to their last legs. 2 players उनके जिंदा है. Meanwhile, Reckoning के चारों players online. Mighty with that trident, he gets one more, and this turns it into a 2v3. There might just be chance for them yet. No, wait, I was wrong. 8-bit actually have 3 of their players alive, and this will be a very fair fight. उन्हें Reckoning Esports को क्लिप के दूसरे साइड पे पुश डाउन कर दिया है. जो स्मोक्स थे वो फेड अवे होना शुरू हो चुके हैं, लेकिन फिर भी Reckoning Esports कॉस्मियम के ऊपर ग्रेनेड डाल के 8-bit को वहां से दूर रखना चाहते हैं. For now, their priority should be saving themselves, and this will be a dangerous fight. Mighty strikes again with the trident, लेकिन एक और रिटर्न फायर होएगा रेकनिंग की तरफ से, this time with the locust. डेविस्टेटर वर्सेस लोकस, एक ट्रेड निकाला उन्होंने जरूर, एंड आई डू बिलीव ये पहला मैच हो सकता है जिसमें शायद कॉस्मियम वो सिक्योर ना कर पाए. कॉस्मियम लेने के चक्कर में वहां पे दोनों टीमों को